नमस्कार दर्शकों, प्रेरणा के स्रोत में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेरणा के स्रोत एक नए पड़ाव पर है, जहां हम सभी युवा प्रतिभाओं को, युवा क्षमताओं को इस मंच पे ला रहे हैं, जो हम सभी के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है, एक ऊर्जा का स्रोत है। आज की इस कड़ी में जो हमसे जुड़ने आ रही हैं, वो है तनु जोशी। तनु 18 साल करीबन कॉर्पोरेट एचआर में काम कर चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने बैगवती नामक एक संस्था का निर्माण किया, जो कि पर्यावरण के लिए समर्पित है और आज वो योगा प्रैक्टिशनर हैं। आइए मिलते हैं तनु जोशी से। Thank you, Shivali. My pleasure. हाउ आर यू? I'm good. How are you? ऑल गुड। वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑन प्रेरणा के स्रोत। जैसे आपको पता है कि ये चैनल हम सभी उन यंग अचीवर्स के लिए कर रहे हैं जो अपने फील्ड में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो और लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाता है। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट यू एक्सेप्टेड दिस इनवाइट एंड यू आर हियर विद अस टुडे। Pleasure is all mine, Shivali. I've been following this channel and I've been recommending your channel to my colleagues, to my friends, and it's so inspiring to see those videos. Thank you so much. Thank you, Tanu. So inspiring. Thank you so much for starting this journey. You have started your career as a corporate HR. For almost 17, 18 years, you worked in HR. And then you decided to do something for the environment, where you started Bhagwati. Yeah. Right? And now you are a practicing yoga expert. So tell us about this journey. How did you manage all this? So I think it's because of my childhood, the way I have been brought up, right? So my parents never decided for me, right? And I have always been that rebellious kid, right, who would decide everything for herself. बचपन से लेके अब तक, right? So they have guided me, but then they have never told me that, okay, this is your decision. I mean, this is the decision that you need to take, right? So जो भी decide किया, वो अपनी मर्जी से decide किया. They supported me, they guided me. I think ये वहाँ से start हुआ. HR भी मैंने खुद पिक किया. मुझे क्या पढ़ना है वो मैंने खुद पिक किया. कहाँ पढ़ना है वो भी मैंने खुद पिक किया. मेरे parents were after me to become a doctor, right? So my father I remember he used to take me to those centers, right, in old times. So I come from a very small town, right? So we never used to have center in our town. So he would take me to Delhi for those exams. And, you know, he had this thing in his, you know, heart that मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए. लेकिन बेटी डॉक्टर नहीं बनना था. I think it has started from there. I did HR, right? Spent almost 18 years there. I loved my profession, right, as HR professional, because as a person, I always wanted to, you know, be connected with people, right? And HR was one of the, you know, field in management where things were not black and white, right? Yeah. So but Shade emotions, of gray. right? Yes, there are lots and lots of gray shades, right? And you connect people, you connect with people emotionally, right? And nothing is kind of in the box. You always explore, right? It gives you an opportunity to be creative all the time. That was, you know, my journey as far as HR is concerned. Then, you know, there is a time in every professions, you know, in every professional life, I would say, where, you know, एक midlife crisis होता है. You start asking yourself, you know, कि ये मैं क्या कर रही हूँ? And how is it adding to my values of my life? Right? Am I growing as a person? Professionally, yes, I was growing. I started from, you know, being a management trainee to AVP in XYZ organization, right? I have seen that growth, right? I was getting money, I was getting fame also, right? Well supported, good managers, good organization. But then somewhere there was, you know, this thing in my heart that what is my purpose of my life? And that is when, you know, I left my job. And thankfully, the family was supportive. It was not easy,
to leave the job, right? When you get salary every month and that amount hits your account, right? The feeling Absolutely. that you I get, so relate to right? this. Yeah. The feeling that you get and suddenly it stops, right? I have been financially very, very independent. If I got married, I mean, I had a love marriage, right? Still, I was very, very financially independent, and suddenly it stopped. How will I survive was the question. Even if my spouse is very, very supportive, right? He would never ask me. But then I believe most of us who have left our corporate careers, just like you, could, relate to this. That what Totally. happens? What is the, Andhi Tufan that you have in your heart? Husband would tell you ki, it's okay, but then you don't feel You okay. don't feel like you're making any You feel that contribution. Yeah. कि हाथ में से रेत निकलता चले जा रहा है और मुट्ठी Correct. खाली हो गई है. Correct. You get that feeling, and I left my job. And so the answer to my question was, what is the purpose of my life? I spent almost 3-4 months to figure out that answer, and that is how Bhagwati started. I connected with few people, the universe connected me rather to few people who were doing fabulous work, in sustaining environment field. So they were making all kind of products which were very, very eco-friendly, right? And I was in Bangalore at that point of time, and we used to use that black polythene in the bins. Oh yeah. Right? I always had that question कि ये पॉलिथीन क्यों लगाते हैं और ऐसे क्यों नहीं हम दे सकते. एंड आई रिमेम्बर कि जो कूड़ा कलेक्ट भी करने आता था, मतलब आई नेवर यूज्ड टू गेट दैट गुड फीलिंग कि क्यों कर रहा है, हम क्यों नहीं ठीक से डिस्पोज कर सकते अपने वेस्ट. एंड फ्रॉम दैट थॉट प्रोसेस इट स्टार्टेड, राइट? सो Bhagwati was a initiative which me and my friend Nikita started, right? Where we were making eco-friendly liners. And these liners were made by, kids and women who are socially abused, right? So we connected with NGOs, and these bags were made out of newspapers. And initially, the problem that we had that कि newspaper कहाँ से लेके आएंगे? Trust me, जैसे ही मैंने अपनी community में बताया कि ये बच्चे बनाएंगे and we'll support these women, लोग रद्दी लेके मेरे घर पे आ गए थे. I know the kind of support that people gave you. I remember, Yes, it was exactly. मतलब you won't believe, मेरी कार की बूट पूरी रद्दी से भरी रहती थी. मेरा स्टोर रूम पूरा रद्दी से एक टाइम पे भरा रहता था. People were so, supportive to this cause. They supported from, their full heart. I get very, very emotional even now thinking about those things. उन आंखों के सामने मेरे चेहरे आ जाते हैं उन लोगों के जिन्होंने इस चीज में हमें सपोर्ट किया और जिनकी लाइफ कुछ हद तक हम बेहतर बना पाए through this small initiative. It ran for almost 6-8 months, और उसके बाद as a family we moved to London. की कहानी कहाँ से शुरू हुई? मेरी लास्ट जॉब जो है वो बहुत ज्यादा stressful थी. I think Tanu, all this time you were somewhere, if you know, all HR professionals and all management professionals would have read with Maslow's hierarchy. Wherein now when you're telling me this, I can actually see you taking one step forward. So first you were busy making your career, and then there was a point where you realized you've reached at the peak, and then you realized that what next? What do I do next? And that's where I think somewhere to contribute to the environment and to the community, Bhagwati's concept came to you. And now the Spoon Yoga. So please tell us about that. So हम लोग अभी फिलहाल लंदन में है, राइट? मेरी लास्ट जॉब बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेसफुल लगी, राइट? क्योंकि मैंने ग्रो तो कर लिया अपने करियर में. जब करियर में ग्रो करते हैं उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत सारी आती हैं, और आपको 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करना पड़ता है, कभी 16 घंटे काम करना पड़ता है, ठीक है? तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली स्ट्रेस होने लग गया था. ये सब चीज़ें मैंने कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की थी. जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने काम किया था, देयर वाज आई वाज एबल टू काइंड ऑफ कोप अप, यू वुड से, और इतना ज़्यादा चैलेंजेस नहीं थे. तो योगा केम टू माय रेस्क्यू. तब से मैंने योगा करना शुरू किया. इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 5-6 years नाउ.
that I've been doing yoga consistently. वहां से योगा की जर्नी स्टार्ट हुई. फिर जब हम लंदन आए, मुझे नौकरी तो यहाँ पे भी नहीं करनी थी. उसके बाद मैंने जब योगा की प्रैक्टिस यहाँ पे भी स्टार्ट की, फिर मैंने सोचा क्यों नहीं मैं सर्टिफिकेशन लूँ योगा में. फिर मैंने योगा सर्टिफिकेशन लिया, यहाँ लंदन में लोगों के साथ प्रैक्टिस किया, सीखा, ट्रेनर बनी. ठीक है, एक लेवल का कोर्स किया, अभी मैं दूसरे लेवल का भी कोर्स कर रही हूँ. आई बिकम ग्रैंड मास्टर इन योगा. और योगा ने एक्चुअली मुझे बदल दिया, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. तो जितने लोग मुझे पहले से जानते थे और जो अब मुझ में बदलाव देखते हैं, हर कोई यही कहता है कि तुम बहुत शांत हो गई हो. देखिए, मैं यहाँ पे आपको 1 सेकंड रोक के एक बात बताना चाहती हूँ. आपको मैं ऑलमोस्ट पिछले 15 सालों से तो जानती हूँ डेफिनेटली. और जो एक बहुत बड़ा रीजन रहा है आपको अप्रिशिएट और एडमायर करने का, वो ये कि लाइफ में आपने जो भी अपने डिसीजंस लिए, वो बहुत ये सोच के लिए कि आपको क्या अच्छा लगेगा करने के लिए. जैसे आपने बताया कि आपकी पेरेंटिंग इस तरीके से हुई कि पेरेंट्स ने आपको बहुत इंडिपेंडेंट बनाया अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए. दे एनकरेज्ड यू टू डू दैट. And eventually what happens now when I look at you, you've made your choices based upon what you would love to do. And somewhere as we were discussing that when I talk to people, जब मैं लोगों से बात करती हूँ एज अ कोच और लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो पता चलता है कि उनकी अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें खुद का कहीं नंबर ही नहीं आता है. 1 2 3 4 5 में कहीं खुद का कोई नंबर नहीं है. और कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ी वजह होती है हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स की. बिकॉज हम खुद को किसी प्रायोरिटी पे रखते नहीं हैं और फिर इवेंचुअली लोग भी हमें अपनी किसी प्रायोरिटी में नहीं रखते हैं. बट एट द वे दैट आई अप्रिशिएट एंड एडमायर यू, जैसे आप अपने आप की मैं बता रही थी, बहुत सी इंस्टाग्राम पोस्ट हैं जहाँ पे आपने सेल्फ केयर के बारे में बात की है, सेल्फ लव के बारे में बात की है. सो थोड़ा सा हम लोग को उस बारे में बताइए. अगर आपने एक मूवी देखी है जब वी मेट, तो उसमें करीना कपूर होती है ना, उसका एक फेमस डायलॉग होता मैं है, अपनी फेवरेट हूँ. मैं अपनी फेवरेट हूँ, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. शुरू से ऐसी नहीं थी. जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते गए, या कहिए कि जैसे जैसे अकल आती गई ज्यादा, राइट, लाइफ को समझना, नए नए एक्सपीरियंसेस, राइट, बहुत कुछ सिखाया लाइफ ने. उतार चढ़ाव, इट हैज नॉट बीन इजी, राइट, जैसे सबकी लाइफ में होता है. मेरी लाइफ भी बहुत कुछ वैसी ही थी, मतलब नथिंग फैंसी, कुछ भी आसानी से नहीं मिला था लाइफ में, राइट. तो धीरे धीरे एज यू सेड कि आपने जो डिसीजन लिए, कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि मैं सेल्फिश हूँ, बट मैंने अपने आप को समझा लिया कि नहीं, ये सेल्फिश नहीं है, मुझे अपनी खुशी भी चाहिए. I understand I have a family, I have a kid to look after, right? I had my in-laws staying with me after marriage, so they were with us. They are no more now for almost 10-13 years. मैं काम भी कर रही थी, उस बीच मेरा बच्चा भी हुआ, राइट, हस्बैंड भी नौकरी कर रहे थे. शुरू में सपोर्ट नहीं होता था, बाद में जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशन हम लोग की अच्छी होती गई तो मेड्स आई, सर्वेंट आया, पूरे टाइम का सब सपोर्ट सिस्टम मिला, लेकिन मैंने अपने आप को कभी खोया नहीं. हाँ, यही सबसे बड़ी बात है. मैंने अपने आप को कभी भी ये नहीं समझा कि फैमिली है, आई केयर फॉर माई फैमिली, बट देन आई केयर फॉर माई सेल्फ टू. ये हमेशा था. I think this is one reason that I really wanted you to come to this platform and talk to the women out there. अक्सर करके लोग, जैसे हमारी अपब्रिंगिंग रही है, कहीं हमारा कंडीशनिंग ऐसा रहा है, चाहे से सोसाइटी का या फैमिलीज में या खुद का भी, कि हम अपने आप को किसी प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं एंड फिर एट द एंड हम खुद ही सफर कर रहे होते हैं. सो या प्लीज गो अहेड. हाँ, तो मतलब आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, तो मेरी माँ भी मुझे यही सिखाती थी कि बेटा बड़ी होगी तुम्हारी शादी होगी, ये सब नखरे वहां नहीं चलेंगे. ये सब मैंने भी सुना है, ठीक है. आई वाज सेइंग कि मैं रेबेलियस रही, तो मैंने सुना, बस सुनने तक ही रखा, लेकिन करी मैंने अपने मन की. सुन लिया, फिल्टर किया, ठीक लगा तो फीडबैक लिया, अपनी लाइफ में चेंजेस किए, लेकिन अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जी. शादी की अपनी मनमर्जी से, नौकरी की अपनी मनमर्जी से, जब मन नहीं किया तब छोड़ दी. ठीक, मुझे इतना अपने आप पे भरोसा था कि कल को अगर ये मेरा डिसीजन नौकरी छोड़ने का नहीं ठीक हुआ, ठीक है भाई, आज मैं XYZ कमा रही हूँ,
कल को भली XYZ नहीं कमाऊंगी, थोड़ा कम कमाऊंगी, लेकिन नौकरी मिल जाएगी, पढ़े लिखे हैं। आई थिंक ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर। दुनिया उतनी भी खराब नहीं है, राइट? आपको सपोर्टिव लोग मिलते हैं। आई अग्री कि जब हम ऐसे आंख बंद करके सोचते हैं तो लगता है यार कितना वर्ल्ड कितना खराब है, हमारी कोई मदद नहीं करता। लेकिन 3 या 4 लोग होते हैं जो आपकी मदद के लिए हमेशा आते हैं। कोई ना कोई रास्ता आपको दिखाता ही है। रागवती किया, किसी ने मुझे रास्ता दिखाया, राइट? भले ही थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे ही किया, राइट? एंड आई एम सो थैंकफुल कि मेरी जॉब इतनी स्ट्रेसफुल थी कि मुझे योगा का रास्ता खुल गया मेरे लिए। सो आई एम सो ग्रेटफुल कि actually this is your temperament, this is your attitude, that you look out for a solution in a problem and not look at the problem. So you mentioned कि योगा आपका स्ट्रेस में आपने योगा ढूंढा, तो पूर्ण योगा कैसे स्टार्ट किया? सो ऐसे मैं बता रही थी आपको कि मैंने योगा 5-6 साल से करना शुरू किया, राइट? जब मैं सर्टिफाई हो गई, राइट, हमेशा मेरे मन में भागवती करने का भी यही रीजन था कि मैं सोसाइटी को कुछ वापस दूं, राइट? कैसे मैं लोगों से कनेक्टेड रहूं, कैसे मैं कुछ कर दूं दूसरों के लिए, हमेशा मेरे मन में रहता था, राइट? मतलब दिखावे के लिए नहीं, अभी भी मुझे लगता है कि यार मैं कैसे लोगों को पढ़ा दूं, कैसे मैं मदद कर दूं। कहीं भी मैं रहती हूँ, ये हमेशा मेरे मन में एक पीस कह लीजिए या आस सी होती है, राइट? पूर्ण योगा जब मैं सर्टिफाई हो गई, राइट, पूर्ण योगा स्टार्ट करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि योगा ने अगर मेरी लाइफ में इतनी सारी चेंजेस कर दिए हैं, मैं पर्सनली इतनी ज्यादा इम्प्रूव हो गई हूँ, राइट? मतलब मुझे खुद को अच्छा लगता है कि मैं ऐसी बन गई, तो मैं क्यों ना दूसरों की मदद करूं ऐसी बनने में कि सब अपने आप को अपनी फेवरेट बनाने लग जाएं। क्यों ही मैं लोगों की हेल्प कर सकती थ्रू योगा, थ्रू मेडिटेशन। तो पूर्ण योगा वहां से स्टार्ट हुआ। सो पूर्ण योगा इनिशियली मैंने सोचा था कि मैं पूर्ण योगा को एक फ्री प्लेटफॉर्म की तरह लॉन्च करूंगी। बहुत सारी फ्री की क्लासेस भी देनी शुरू की। फिर मैंने रियलाइज किया कि यार लोगों को फ्री में अगर कुछ देते हैं तो लोगों को लगता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं बहुत थोड़ा सा चार्ज करती हूँ लोगों से, बहुत छोटा सा चार्ज, ताकि उनको लगे कि उनकी जेब से पैसा जा रहा है तो उसकी थोड़ी सी वैल्यू करें। कमिटमेंट भी बन जाता है जब आप किसी चीज के लिए, राइट, एग्जैक्टली। अगर आप फ्री में सिखाते हैं तो लोग सीरियसली नहीं लेते, क्लासेस में आते हैं नहीं आते। थोड़ा सा अगर पैसा चार्ज करते तो फिर उनको लगता है यार वी आर गिविंग दिस अमाउंट एंड व्हाई नॉट अटेंड क्लासेस। तो वहां से शुरू हुआ। तो अभी पूर्ण योगा में मेरा सबसे बड़ा रीजन लोगों की हेल्प करना था। दूसरा योग की परसेप्शन चेंज करना था, राइट? सो योगा लोग सोचते हैं कि इट्स ऑल अबाउट ग्लैमर, राइट? कि पतली पतली लड़कियां योगा करेंगी और मैं तो इतनी मोटी हूँ, मैं कैसे करूंगी, कैसे मेरा पैर ऊपर जाएगा, कैसे मेरा हाथ नीचे आएगा, ये तो यंगस्टर्स के लिए है एंड इट्स ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। सो ये नोशंस हटाने के लिए भी, सो योगा इज नॉट अबाउट ओनली फ्लेक्सिबिलिटी। योगा का जो मेन एसेंस है इज ब्रेथ। आसन तो योगा की अगर हम बात करें, आसन तो अगर कैटेगरीज या हायरार्की की बात करें तो आसन पहले आते हैं, उसके बाद आता है आपका ब्रेथ, राइट? आसन आपको प्रिपेयर करते हैं प्राणायाम के लिए, राइट? लेकिन सारी दुनिया सिर्फ आसन करती है और जो प्राणायाम जो कि एसेंस है योगा का उसको भूल गए हैं। मेडिटेशन, अपने आप से कनेक्ट करना इज योगा। लोग भूल गए हैं अपने आप से कैसे कनेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि अपने पूर्ण योगा के थ्रू मैं लोगों को ये सिखा सकूं कि खुद को कैसे प्यार करना है, ठीक है? मेरे साथ जब वो आधे घंटे या 40-45 मिनट वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो सब कुछ भूल जाएं और सिर्फ अपने बारे में सोचें। यही मेरी कोशिश है एक छोटी सी पूर्ण योगा से। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थॉट। 2021 के लिए आपके क्या प्लान्स हैं पूर्ण योगा के लिए? मैंने आपके कुछ चैलेंजेस देखे इंस्टाग्राम पे, जहाँ एक आध दो को मैंने भी ट्राई किया। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत सारे लोगों ने जो मेरे ग्रुप में है उन्होंने भी और कोशिश की। हम लोग काफी लोग जुड़े, समझे चैलेंजेस क्या है। एक्चुअली थोड़ा प्रैक्टिस लगता है टू डू दैट। सो आपके 2021 में क्या प्लान है पूर्ण योगा के लिए? See, to be very honest,
कुछ ऐसा फिक्स्ड प्लान नहीं है. I just want to go with the flow. I want to reach out to more and more people, right? अभी हमने सीनियर्स को सिखाना शुरू किया है. पहले मैं सीनियर्स को नहीं सिखाती थी, राइट? तो वो एवेन्यू है जहाँ पे मैं अपनी एनर्जी बिल्कुल दिलो जान से लगाना चाहती हूँ, राइट? यू हैव हेल्प्ड मी कनेक्टिंग टू ओल्ड एज होम्स, राइट? कपल ऑफ मोर पीपल हैव हेल्प्ड मी कनेक्ट टू ओल्ड एज होम्स, राइट? सो ये एक चीज है जिसे हम नेक्स्ट लेवल तक मैं ले जाना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा सीनियर्स को हम योगा सिखा सके. बेसिकली जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं मोबिलिटी कम होती चली जाती है. तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग मोबाइल रहें, राइट? किसी तरह से उनकी मैं मदद कर सकूं through the yoga is where I would like to put my energies in the coming year, or this year rather, right? And the next thing that I would want to do is expand my wings in corporates as well. I have been connected with corporates, right? So मैं corporate में लोगों को योगा सिखा रही हूँ क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट में इतने साल काम किया. मैं चाहती हूँ कि उनका थोड़ा सा मैं भला कर दूं. बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया है, राइट? तो मैं उन्हीं लोगों के पास फिर से जा रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि जो मेरे दिल के दर्द थे उनके भी वही दर्द है. तो उसको कैसे ठीक कर दूं? It's difficult to have that very stressful life in corporate especially. Yeah. So I wish you and Poon Yoga loads of luck and success for this year. Thank you. Thank you so much for connecting with us. Thank you so much. Thank you so much, Shivali. Thank you. Pleasure is on mine. Thank you. Thank you.